प्रेज द लॉर्ड। आइए अपनी शाम की सभा को शुरू करेंगे। सरों को हम प्रार्थना में झुकाएंगे। जीवन के बानी, जिंदा उद्धार करता प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपका बहुत धन्यवाद हो प्रभु इस प्यारे वक्त के लिए खुदावन जो आपने हमें दिया। प्रभु आपके भवन में आ सके खुदावन, जबकि 2 जवानों ने, भाई केलब ने और बहन शारन ने खुदावन इस बात का फैसला लिया, इन परिवारों ने फैसला लिया प्रभु कि आगे फ्यूचर में प्रभु विवाहित जीवन में बढ़ेंगे आगे। लेकिन उससे पहले जैसे नबी ने सिखाया खुदावन, एक फैसला है, उसके बाद एक एंगेजमेंट है खुदावन। और आज हम इस एंगेजमेंट को विटनेस करने यहां पर आए हैं खुदावन। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं, आपकी तारीफ करता हूं प्रभु। आप हमारे बीच में मौजूद हैं अपने वचन के अनुसार। आपने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर होता हूं। मैं विश्वास करता हूं आप प्रभु यहां मौजूद हैं। प्रभु आपके नाम की तारीफ, स्तुति, बड़ाई हो खुदावन। हमारे अजीज पास्टर भाई को आप बड़ी बरकत दें, भाई टाइटस को आप बड़ी बरकत दें खुदावन। आप पास्टर जॉन को भी और भाई जेकब को भी प्रभु लुधियाना से आपने आने का फजल दिया। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं खुदावन। भाई विमल उनके परिवार को, भाई लाजरस उनके परिवार को बड़ी बरकत दें। आप ही खुदावन प्राथमिकता पाए हमारे जीवनों से प्रभु, और यह एंगेजमेंट प्रभु आपकी ओर से आशीषित हो सके खुदावन। तमाम भाई बहन जो आए बड़ी बरकत दें प्रभु, और वो भाई बहन जो इंटरनेट के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु, फजल दे कि वो भी लाभान्वित हो सके खुदावन। आपका नाम मुबारक हो, आपके नाम की तारीफ हो। आदर, महिमा, धन्यवाद आपको देते हुए इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन, आमीन। गीत का नंबर 234 गाएंगे हम। इन हिज टाइम ही मेक्स ऑल थिंग्स ब्यूटीफुल। इन हिज टाइम, in his time, in his time, he makes all things beautiful. In his time, Lord, please show me every day as you're teaching me your way, that you do just what you say in your time. In his time, once again. In his time. In his time. He makes all things beautiful. In his time, Lord, please show me every day as you're teaching me your way, that you do just what you say in your time. In your time. In your time, in your time, you make all things beautiful. In your time, Lord, my life to you I pray. May each song I say be to you a lovely thing. In your time, in your time, in your time, you make all things beautiful. In your time, Lord, your voice I want to hear. Make me still and not to fear. Show me that you're all
in His time. He makes all things beautiful in His time. Lord, please show me every day as You're teaching me Your way, that You do just what You say in Your time. Amen. Hallelujah. He makes all things beautiful in His time. Amen. He's got control over the seasons and the times. Amen. Hallelujah. He's here tonight. You believe that? Let's sing one more chorus. I believe हम में से कईयों को आता है. El Elah Elohim, how we long to worship You. El Elah Elohim, how we long to worship You. El Elah Elohim, how we long to worship. Once again. El Elah Elohim, how we long to worship You. El Elah Elohim, how we long to worship You. Lord, we come. Lord, we come to You in worship, no matter what the circumstances, no matter what the situation, we will live Your holy name. El Elah Elohim, how we long to worship You. El Elah, oh yes, Lord, Elohim, we praise You, Lord. How we long to worship You. Once again. El Elah, oh God, how we love You, Lord. Elohim, how we long to worship You. El Elah, Elohim, how we long to worship You. Lord, we come. Lord, we come to You in worship, no matter what the circumstances, no matter what the situation, we will live Your holy name. El Elah Elohim, how we long to worship You. El Elah Elohim, how we long to worship You. Oh yes, Lord, how we long to worship You, Lord. We come in Your presence, Lord, no matter what the situation, the circumstances be, Lord.
We will lift your holy name on high, Lord. El Elah, Elohim. How we long to worship you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Great is our Lord, greatly to be praised. Hallelujah. My, what an anointing here, Jesus. Why we all standing? Let's sing that chorus. Only believe all things are possible. And while this song is going on, I'll invite the pastor. Amen. Only believe. Only believe. And all things are possible. Only believe. My Lord, I believe. My Lord, I believe that all things are possible. My Lord, I believe. We all believe. My Jesus is here, precious pastor. My Jesus is here, and all things are possible. My Jesus is here. My Jesus is here. My Jesus is here, and all things are possible. My Jesus is here. We thank you, Abba, Heavenly Father, हे अब्बा स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं for giving us another time and opportunity एक और समय और सौभाग्य देने के लिए प्रभु, to come in your presence. कि आपकी उपस्थिति में आ सके। Under your shed blood we come, आपके बहाए हुए लहू के अंतर्गत हम आते हैं। and we pray, Father, today evening, और आज शाम को प्रभु हम दुआ करते हैं, when these two young people have made their decisions, जब इन दो जवानों ने आज एक फैसला लिया है, Brother Caleb and Sister Sharon, खुदावन भाई केलब और बहन शैरन ने खुदावन to be engaged and later to be wedded in a holy matrimony, कि आज खुदावन सगाई में आगे बढ़े प्रभु, और आगे एक पवित्र ब्याह में प्रभु बन सके। I pray, Father, may you come and bless us with your word प्रभु मेरी दुआ है आप आए और अपने वचन से हमें आशीषित करें, and bless this would-be couple. और इस होने वाले जोड़े को आप बड़ी बरकत दें। Bless the family of Brother Vimal and Brother Lazarus. भाई विमल और भाई लाजरस के दोनों के परिवारों को आप बड़ी बरकत दें, And please come amongst us and bless us with your word. और हमारे बीच में आकर हमें वचन से आशीषित करें। We commit everything into your hands of grace. सब चीज खुदावन आपके अनुग्रहकारी हाथों में हम सौंपते हैं। In the name of Jesus Christ, our Lord, we ask this prayer. प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ विनती को मांगते हैं। Amen. आमीन। While we all standing, जबकि हम लोग सब खड़े हैं, let's turn to 2 Corinthians chapter 11. आइए अपनी बाइबलों में हम निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय, And we read verse 1 to verse 3. और हम पहली 3 आयतें पढ़ेंगे। Would to God he could bear with me a little in my folly, and indeed bear with me. For I am jealous over you with godly jealousy.
For I have espoused you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. But I fear lest by any means, as the serpent beguiled Eve through his subtlety, so your mind should be corrupted from the simplicity that is in Christ. यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। हाँ, मेरी सह भी लो, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में खुदाई धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सर्प ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होना चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। Lord Jesus, we thank you for the reading of the word. प्रभु, वचन के पढ़े जाने के लिए हम आपके धन्यवादित हैं। Now you come and bless us in this occasion. और इस मौके पर आकर आप हमें बरकत दें। In the name of Jesus Christ, O Lord, we ask this prayer. प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ विनती को मांगते हैं। Amen. आमीन। You can be seated. आप लोग बैठ सकते हैं। I really thank God, and I say a God bless to everybody who's come. मैं कहना चाहूंगा खुदावंद के नाम की तारीफ हो और खुदावंद हर एक को जो यहाँ आया है बड़ी बरकत दे। It's really a wonderful day the Lord has given to you and I. एक बहुत ही प्यारा दिन है जो प्रभु ने आपको और मुझे दिया है। When Brother Caleb and Sister Sharon are going to be engaged. जब भाई केलब और बहन शरण आज सगाई में पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। It's a wonderful day the Lord has given to us. एक बहुत ही अद्भुत दिन है जो खुदावंद ने हमें दिया है। And I thank God for this time which our Lord has provided for us. और खुदा का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो खुदावंद ने हमारे लिए मुहैया किया है। As the prophet talked about this mate which is in heaven that comes on earth and then goes back to eternity. जैसे खुदावंद ने बताया उस जोड़े के बारे में जो कि स्वर्ग में था, फिर पृथ्वी पर आया और फिर वापस वहीं लौट जाता है, जो अनंत जोड़ा है। We really thank God that God has prepared it in heaven. और हम खुदा का धन्यवाद करते हैं खुदावंद ने इसको तैयार किया है स्वर्ग में। I'll welcome our precious brother Pastor John from Ludhiana who has come to witness this marriage. Amen. God bless you, और brother. पास्टर जॉन जो लुधियाना से आए हैं, मैं उनको खुशामदीद कहना चाहूंगा। खुदा बड़ी बरकत दे। And brother Jacob with him. और भाई जेकब उनके साथ। God bless you. खुदा बड़ी बरकत दे भाई। And I would say this, that this is a wonderful time that the Lord has provided to you and I. और मैं कहना चाहूंगा ये बहुत ही अद्भुत समय जो खुदावंद ने आपको और मुझे मुहैया कराया है। Amen. Seeing brother Robin, God bless you. भाई रॉबिन को देख रहा हूँ, गॉड ब्लेस यू भाई। Yesterday, I think day before, we crossed each other. और परसों की बात है कि हम आपस में एक दूसरे के को क्रॉस किया हमने। He came from Bombay to Delhi. I went from Delhi to Bombay. भाई बम्बई से दिल्ली आए और मैं दिल्ली से बम्बई गया। But anyhow, we are meeting here. लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, हम यहाँ मुलाकात कर रहे हैं। So blessed be the name of the Lord. सो खुदावंद का नाम जलाल पाए। And I like to take this opportunity to share something about engagement. तो इस मौके का फायदा उठा करके मैं सगाई के विषय में कुछ बातों को रखना चाहूंगा। And I think it should be something of a best blessing for all of us. मैं सोचता हूँ कि हम सब के लिए एक बरकत का बाइस होगा। As I have repeated and I'll have to repeat it, in a proper marriage, जैसे मैंने इस बात को बोला है और मैं दोबारा दोहरा के बोलना चाहूंगा, एक उचित विवाह में we have 4 steps. हमारे पास 4 चरण होते हैं। The step number 1 is decisions. सबसे पहला चरण है फैसला लेना। After that, engagement, which is at the altar. और उसके बाद सगाई जो कि मंच यानी वेदी पे होती है। After that, the marriage. और उसके बाद शादी। And the 4th stage Brother Branham talked about is heirship. और चौथी अवस्था जिसके बारे में नबी ने बताया वो है संगी वारिस होना। To be fellow heirs. ताकि संगी वारिस हो सके। All that belongs to him now belongs to her. जो कुछ उसका है अब वो सब कुछ दुल्हन का हो जाता है। So we have those 4 steps. तो हमारे पास वो 4 चरण है। And beautifully tied to the 3 steps of grace. और सुंदरतापूर्ण अनुग्रह की 3 सीढ़ियों से जुड़ा हुआ है। Justification, when you made your decisions. धर्मी ठहरना जब आपने अपने फैसले लिए। And you took water baptism. और आपने पानी का बपतिस्मा लिया। Sanctification is equivalent to that engagement. और पवित्रीकरण बराबर है सगाई के। When you are engaged, जब आपकी सगाई होती है, now you are sanctified for each other. तब आप एक दूसरे के लिए पवित्र हो जाते हैं। The boy for the girl and the girl for the boy.
लड़का लड़की के लिए और लड़की लड़के के लिए। Now you can't look here and there. अब आप अपनी आंखें इधर उधर नहीं लगा सकते। It's so strong, the prophet said in the message that it is almost equivalent as marriage. और ये इतनी तीव्र बात है, नबी ने इसको संदेश में बताया कि सगाई शादी बराबर है। In fact, he said in God's book, you're as good as married. उन्हें खुदा की किताबों में आप शादीशुदा हैं, As good as married. शादी बराबर है। But then we have a future ceremony, yes. लेकिन आगे भविष्य में हमारी एक क्रिया होती है। So we find this that engagement is sanctification. और हम पाते हैं कि सगाई जो है ये पवित्रीकरण है। And that is the very important part of a Christian life and also a part of a marriage which takes place. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है एक मसीह जीवन का और एक शादी के लिए भी। Paul said, पौलुस भाई ने कहा, I am jealous over you with godly jealousy. खुदाई जलन को लेकर के मैं तुम्हारे लिए एक जलन रखता हूं। Amen. If Amen. you want to read, there was a law of jealousy written in the Bible. अगर आपने पढ़ा हो बाइबल में तो लिखा हुआ है एक जलन की एक व्यवस्था थी। If a man suspected that his wife had committed adultery, अगर एक आदमी को ये लगा कि उसकी पत्नी ने व्यभिचार जिना किया, it's a suspicion. ये अभी एक अनुमान ही है। So he will go to the priest and they'll bring some ashes और फिर वो याजक के पास जाएंगे और फिर वो खराक को लेके आएगा and put it in water and make her drink it. और उसको पानी में मिलाएंगे और फिर उसको पिलाएंगे उसको। And if she has done some wrong, और अगर उसने कुछ गलत किया होगा, her thighs and that lower part of the abdomen will rot. तो उसकी जांघें और पेट का निचला हिस्सा जो है वो सड़ जाएगा। It's written in the Bible. ये बाइबल में लिखा है। But if it doesn't rot, लेकिन अगर वो ना सड़े, she has not done anything wrong, उसने कुछ गलत नहीं किया, it was just a suspicion. तो ये केवल एक सस्पिशन यानी कि एक शक ही था। And how beautiful it was, we were seeing one time. और एक दफा ये कितना सुंदर था, हम देख रहे थे। God brought a book खुदावंद एक किताब लाए and made the churches eat it. और कलीसिया को उसको विवश किया कि वो उसको खाए। But for some, where the book went, it brought a rottening. और कुछ जगह जहां पर ये किताब गई एक सड़ाहट को लेके आई। Their reproductive system has rotted. उनकी प्रजनन तंत्र जो था वो सड़ गया। And that is what has happened with the harlot churches. और यही कुछ हुआ है वैश्यवृत्ति कलीसियाओं के साथ। They are proved to be adulterous. उन्होंने इस बात को साबित कर दिया कि वो व्यभिचारी हैं। But when it was given to the bride, लेकिन जब वही किताब दुल्हन को दी गई, it was a cause of blessing. तो ये बरकत का बाइस बन गया। Amen. आमीन। So we really thank God that everything is written in the Bible. तो हम खुदा का धन्यवाद करते हैं, हर एक चीज बाइबल में लिखी है। And now the messenger is saying, और अब संदेशवाहक कह रहा है, I have that jealousy in me. मेरे अंदर वो जलन है, खुदाई जलन That है। godly jealousy for you, the church. खुदाई जलन मेरे अंदर है, तुम जो कलीसिया है उसके लिए। Because I have espoused you, engaged you, betrothed you. 3 different words to one husband. क्योंकि मैंने तुम्हारी बात लगाई, अंग्रेजी शब्द है, मैंने तुम्हारी एंगेजमेंट करी है, तुम्हारी बेट्रोथल किया है और मैंने मेरे को एस्पाउस किया है। To one husband. एक ही पति के साथ। That I may present you as a chaste virgin to Christ. ताकि मसीह के लिए मैं तुम्हें एक पवित्र कलीसिया के रूप में सौंप दूं। Remember that word chaste and virgin speaks of sanctification. आप देखिए, पवित्र, शुद्ध और कुंवारी ये शब्द बात करते हैं दुल्हन के लिए। When you read the message on 10 virgins, he said they all were virgins, they all were sanctified. जब आप 10 कुंवारी वाला संदेश पढ़े, नबी बता रहे हैं वो 10 की 10 कुंवारी थी, वो 10 की 10 पवित्र थी। So virgin and chastity speaks of sanctified, pure. तो शुद्धता और जो कुंवारापन है ये पवित्रताई के विषय में बातचीत करता है। That is the reason when Joseph came to know that Mary is pregnant, he wanted to put her away. यही कारण था कि जब यूसुफ को मालूम हुआ कि मरियम गर्भवती है तो वो उसको चुपचाप से छोड़ना चाहता था। This is where I would like to inject a point. ये वो जगह है जहां पे मैं एक बात बताना चाहूंगा। In a right marriage, एक उचित शादी में the relations come when the wedding has happened. संबंध तब आते हैं जब शादी हो जाती है And there are children born in wedlock. और शादी के बाद फिर बच्चे पैदा होते हैं। I'm using an English word, Brother Branham used. भाई ब्रैनम ने एक अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल किया, वेडलॉक। बच्चे जो हैं वेडलॉक में पैदा होते हैं। They are proper child. ये उचित बच्चे हैं। If there is a case that wedding took later, relations happened before. अगर ऐसा कोई मामला हो
जिसमें कि संबंध पहले बन गया और शादी बाद में हुई, There are some cases, and to cover it, you do a marriage. और उसको ढांकने के लिए क्या करते हैं? शादी कर लेते हैं। The child, if it is born from that relation, उस संबंध से जब बच्चा पैदा होता है it's not a proper child. तो ये उचित बच्चा नहीं है। That's right. बात सही है, That's not a proper child. ये उचित बच्चा नहीं है। But Moses was a proper child. लेकिन मूसा एक उचित बच्चा था। So I was just explaining a small point because it came, I said, I'll tell you. बात आई निकल के, तो इसलिए मैंने इस छोटे पॉइंट को आपके सामने रखने की कोशिश करी। By the grace of God, खुदावंत के अनुग्रह से Brother Caleb and Sister Sharon, भाई केलब और बहन शैरन, I know both of them. मैं दोनों को जानता हूं। They are very well known to me. मैं भली भांति इनको जानता हूं, And the two families. और दोनों परिवारों को। And by the grace of God, they have made their decisions. और खुदावंत के अनुग्रह से इन दोनों ने फैसले लिए हैं, And we are very happy for that. और इस बात के लिए हम बहुत ज्यादा खुश हैं That finally the decisions have come. कि आखिरकार फैसले आ गए हैं, And now today they are here to be engaged. और आज ये यहाँ मौजूद है ताकि इनकी सगाई हो सके। And by the grace of God, things are working out. और खुदावंत के अनुग्रह से चीजें अब पूरी हो रही हैं। I want to show you few things. मैं आपको कुछ बातें दिखाना चाहूंगा। Regarding this engagement, I would like to read few quotes to you from the message. संदेश से मैं कुछ हवाले पढ़ना चाहूंगा इस सगाई के संबंध में। And may it be a cause of blessing for all of us. काश ये बरकत का बाइस हम सब के लिए हो सके। But please bear this in mind that engagement stands for sanctification. लेकिन इस बात को अपने विचारों में रखिए कि सगाई पवित्रताई के लिए है। Why there is an engagement before a marriage? क्यों शादी से पहले एक सगाई है? There is a sanctification before the baptism of Holy Ghost. क्योंकि पवित्र आत्मा के बपतिस्मे से पहले एक पवित्रीकरण का सीढ़ी है। Once you are born again, एक दफा आपका नया जन्म हो जाए, your old name is gone आपका पुराना नाम चला जाता है and your new name lives. और आपका नया नाम विद्यमान रहता है। Brother Branham said, भाई ब्रैनम ने बताया, that's your marriage certificate. ये आपका विवाह का प्रमाण पत्र है। If you read Invisible Union, you'll find that. अगर आप अदृश्य मिलाप वाला संदेश पढ़ें, आपको ये बात वहां मिलेगी। But before that can happen, लेकिन इससे पहले ये हो सके, there is a step of sanctification, एक चरण है पवित्रीकरण का, which is very, very important. जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। Now, I'm going to read out a few quotes to you from this regarding engagement. सगाई को लेकर मैं कुछ हवाले आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। It starts from a story Brother Branham shared. ये चालू होता है सिलसिला एक कहानी से जिसको भाई ब्रैनम ने शेयर किया। अरे, God bless you. I saw you also. Brother Rajiv Das from Eta. God भाई bless you. राजीव दास एटा से खुदा बड़ी God बरकत दे। bless you. God bless you. God bless you. Amen. God bless you. Amen. आमीन। So that story goes like this. सो कहानी इस प्रकार से बढ़ती है आगे। There's a young boy from Chicago एक जवान लड़का है शिकागो से who wants to seek a wife. जो कि एक पत्नी को खोज रहा है। And so he goes to the Wild West, Arizona, that around that area. तो वो एरिजोना जिसको वाइल्ड वेस्ट कहते हैं वहां पे गया। And when he reaches that place, और जब उस पश्चिम तट पे पश्चिमी हिस्से में गया, the girls who are living there know that this boy is coming, and most probably the reason he's coming for is a marriage. और लड़कियां जो इस जगह पे रहती हैं उनको मालूम है कारण कि वो लड़का यहाँ क्यों आ रहा है। उसको एक पत्नी खोजने आ रहा है। He couldn't find one in Chicago. शिकागो में उसको एक मिल नहीं पाई। That reminds me of a funny event I faced when I was landing in Hyderabad, and that was the Chicago flight. Brother Raji might be remembering it. There's a boy gets down. He's coming all the way from Chicago. Yes. और ये इस बात से मुझे याद आती है एक और वृतांत कि जब हम जा रहे थे हैदराबाद और हम उस हवाई जहाज से जा रहे थे जो कि शिकागो से आ रहा था और हैदराबाद जा रहा था, और वो लड़का जो है एक लड़का शिकागो से आ रहा था वहां पे उस प्लेन में। And we were at the belt to pick up our luggage. और हम बेल्ट पे पहुंचे ताकि अपना सामान उठाएं वहां पे। That boy appeared very disturbed. लड़का बहुत ही परेशान दिख रहा था। You know what was he saying? आप जानते हैं वो क्या कह रहा था? My girlfriend just bashed my phone. मेरी गर्लफ्रेंड ने अभी मेरा फोन तोड़ दिया। So you know I've somehow managed another one, and that's why I'm calling you. और उसने कहा कि इसलिए मैंने कहीं से कोशिश करके एक मैंने फोन उठा पाया हूं ताकि मैं तुम्हें कॉल कर पाऊं। Anyhow, so this boy couldn't find somebody in Chicago. सो इस लड़के को शिकागो में, जो भाई ब्रैनम कहानी बता रहे हैं, इस लड़के को शिकागो में कोई लड़की मिल नहीं पाई। And because he couldn't find one, because he was looking for a character, क्योंकि वो एक चरित्र देख रहा था, चरित्र खोज रहा था। finally he decided to come to this Arizona area.
आखिरकार उसने ये फैसला लिया कि मैं एरिज़ोना के स्थान पे जाऊंगा। Who's this boy who came in Arizona? कौन है ये लड़का जो कि एरिज़ोना में आया, Who landed in Arizona, yes? जो उतरा, मैं कहूंगा उतरा एरिज़ोना में। And there were many young girls there. और वहां पे बहुत सारी जवान लड़कियां थी। Everybody thought we are going to get this boy. हर एक कोई सोच रहा था कि मुझे ये लड़का मिल जाएगा। So they were concentrating on their outward beauties and dances. तो वो अपनी बाहरी खूबसूरती और नाच गानों पे ज्यादा केंद्रित हो रहे थे। They had a cousin. उनके पास एक बहन थी, कजन, And they used to treat her very rightly. और वो उसके साथ बड़ा बुरा व्यवहार करते थे। She used to wash the dishes there. वहां पर वो बर्तन धोने का काम करती थी। And finally, the boy spent a lot of time there. और आखिरकार आप पाएंगे लड़के ने बहुत समय वहां पे बिताया, But he couldn't find that character he was looking for. लेकिन जो चरित्र वो खोज रहा था उसको वहां मिला नहीं। But लेकिन he spied this particular girl. इसने इस लड़की को जासूसी तौर पे देखा। Naturally, she was found where all the dishes were being washed. और प्राकृतिक बात यह थी कि ये लड़की वही मिली जहां पर सारे बर्तन का ढेर लगा हुआ था। And so what happened was she was outside with a dish pan in her hand, getting ready to wash it. और इसलिए वहां पर वो बाहर बैठी थी कढ़ाई को लेकर के ताकि उसको साफ करे। And then what happened? तब क्या हुआ? He looked at her and he came in front of her. उसने उसकी ओर दृष्टि डाली, तो उसको देखा और फिर उसके सामने आ गया। And he said, और उसने कहा, will you marry me? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? Now I'm reading from that point. अब मैं उस पॉइंट से पढ़ रहा हूं। Oh, she said, sir, I'm not worthy. उसने कहा, श्रीमान मैं योग्य नहीं हूं। That's the way the real church feels about it. इसी प्रकार से जो वास्तविक कलीसिया इसके बारे में महसूस करती है, I'm not worthy. मैं योग्य नहीं हूं। Again, if I could just wash your dishes, it'll be all right. हाँ, अगर केवल इतना हो पाए कि मैं आपके बर्तनों को मांज लूं और धो दूं, मेरे लिए इतना ही काफी है। Are you willing to take that place? क्या आप तैयार हैं उस जगह को लेने के लिए? Could you wash the dishes from the supper? क्या उस भोज से जो बर्तन निकले हैं क्या तुम उसे धो सकते हो? Would you be willing to be called fanatic? क्या आप तैयार हो कि आप पागल कहलाए जाओ? Or would you be willing to take the way with the Lord's despised few? और क्या खुदावन के लिए जो तुच्छ गिरे जाते हैं, क्या उनमें तुम अपना शुमार चाहते हो? Are you willing? क्या आप इच्छा कर रहे हो? Then I jump further. तो मैं आगे बढ़ता हूं। In para 151, second coming of the sudden secret going away of the church, the bride, in that message he shares this. अचानक से गुप्त रूप से कलीसिया का यहां से जाना, उस संदेश में नबी यहां पे 151 अनुच्छेद में कह रहे हैं। So when he left, सो जब वो छोड़ के गया, he told her उसने उस लड़की से कहा he would be back at a certain time. कि एक खास समय वो लौट के आएगा। Said when you begin to see, उसने कहा जब तुम ये देखने लगो, it was the winter. ये सर्दी का समय था। Said when you begin to see those trees begin to bud. उसने कहा कि जब तुम उन वृक्षों पे कोपले आते देखो, So when they were engaged and the promises were made, it was a winter time. सो जब उनकी सगाई हुई और जब उन्होंने फैसले लिए थे और सगाई का समय आया, ये शीतकाल का समय था, ये सर्दी का समय था। And she told that girl, और उस लड़के ने लड़की से कहा, when you begin to see those trees begin to bud, जब तुम देखो कि वृक्ष में कोपले लगने लगे, you know that mesquite and stuff begin to take on new life, और तुम उन झाड़ियों में देखो कि उसमें नया जीवन शुरू आ रहा है, so then I'll be back about springtime. तो उसने बताया कि मैं उस ग्रीष्म काल के समय आऊंगा। Springtime, brother. वसंत ऋतु में मैं आऊंगा। I understand, मैं इस बात को समझता हूं। Brother Branham says, भाई ब्रैनम कह रहे हैं, I couldn't say it was true, मैं इसको ये नहीं कह सकता ये सच है, but the girl only got about $1.75 a week for her labor. उस लड़की को उसका मेहनताना केवल $1.75 मिलते थे एक हफ्ते के लिए, But she saved every penny of it. लेकिन उसने हर एक दमड़ी बचाई उसके लिए। Why? क्यों? She was getting ready वो तैयार हो रही थी for the wedding that was to be. उस शादी के लिए जो होने वाली थी। She was saving her money for her wedding gown. अपने शादी के वस्त्र के लिए वो पैसा जोड़ रही थी, For he said, क्योंकि उसने कहा था we'll be married right here at the ranch when I come again. कि हम इस रैंच पे, इसी जगह पे जब मैं लौट के आऊंगा हम यहाँ शादी करेंगे। She saved her money all year. पूरे साल उसने अपना पैसा बचाया। She was happy. वो बहुत खुश थी। She didn't mind washing the dishes. उसको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा बर्तन धोने से। She didn't mind ironing the clothes. उसको
कपड़ों को इस्त्री करने में उसको कोई शर्म नहीं आए, or sweeping out the bunkhouse, और या बंक हाउस में जाके पोछा लगाना, or what more, या कुछ भी हो, she was engaged to the boss of the ranch. उस रैंच के मालिक से उसकी सगाई हो गई थी। What do we care हम किस बात की परवाह करें? what the world says? संसार क्या कहता है, किस बात की परवाह करें हम? A real Christian. एक वास्तविक What do मसीही, we care if we have to be despised and rejected? हम इस बात की परवाह क्यों करें, चाहे हम तुच्छ गिने जाएं, चाहे हम रिजेक्ट किए जाएं। Blessed are the meek, मुबारक है वो दीन, for they shall inherit the earth. क्योंकि वो पृथ्वी के वारिस होंगे। The boss's son is a coming one day, जो बॉस का बेटा एक दिन आने वाला है, and we are going to a wedding supper. और हम ब्याह के भोज में जा रहे हैं। What difference does it make to us इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? if you love his appearing? अगर आप उसकी प्रगटीकरण से प्रेम करते हैं। After it was the days passed, after some times, कुछ समय पश्चात जब दिन गुजर गए, the little daughters, the little cousins made fun of her, जो उसके साथ उसकी जो कजन्स थी उसका मजाक उड़ा रही थी, danced around her and done everything else. उसके इर्द गिर्द नाच रही थी और सब कुछ जो कर सकती थी Well किया। said, you poor silly kid. और कहा तू तो बेवकूफ लड़की है, Do you not know if why he was just like all other men? तुम नहीं जानती वो तो बाकी लड़कों के समान है, He was just teasing you. वो तो तेरा केवल मजाक उड़ा रहा था। But the Son of God doesn't tease. लेकिन खुदा का पुत्र कभी मखौल नहीं उड़ाते। Except a man be born again, जब तक एक मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे, he will in no wise. वो किसी भी रीति से नहीं कर I पाएगा। don't care how good you look, how much church you belong to, or what your status is in the country. देश में तुम्हारी क्या हालत हो, तुम कितना चर्च जाते हो और तुम कितना खूबसूरत दिखते हो। You might be a politician. हो सकता है तुम एक सियासत वाले You हो, might be in the federal government. हो सकता है कि आप सरकार में हो, You might be in the Catholic Presbyterian, any church you want to be. आप कैथोलिक प्रेस्बिटेरियन या किसी भी चर्च में रहे हो, But it's except a man be born again, लेकिन बात इस पे है कि जब तक एक मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे, you will not enter. आप खुदा के राज में प्रवेश नहीं कर And सकते। these signs shall follow them that believe. और विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे। I'm only quoting his word. मैं केवल उसके वचन को बोल रहा हूं। Finally, when the hour come, आखिरकार जब घड़ी पहुंची, she began to see this. वो इस बात को देखने लगी The buds begin to come on the trees. कि वृक्षों में कोपले लगने लगी। She knew he would be there at any time. उसको मालूम था कि अब वो लड़का अब किसी भी समय आने वाला होगा। And he said, I'll try to make it just at sundown so we can be married and hurry off. उसने कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं इससे पहले कि सूरज डूबे, सूरज डूबते हुए मैं आ जाऊंगा और फिर हम जल्दी करके यहां से चले जाएंगे। And every evening at sundown, और हर शाम को सूरज गुरूब होने के when समय she would go and make herself all ready, वो अपने आप को पूर्णतया से तैयार करती थी get her little wedding garment और अपने ब्याह के वस्त्र को पहनती थी and wait at the gate. और फाटक पे इंतजार करती थी। I can go on, but I would say this. मैं आगे बढ़ सकता हूं इस किस्से में, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं। And finally that boy came और आखिरकार वो लड़का आ गया in that springtime, उस वसंत ऋतु के समय, as he had promised, जैसे उसने वायदा किया था, and took her home to her future home in Chicago. और उसको उसके भविष्य के घर में शिकागो ले गया। Amen. आमीन। That's a wonderful bride. ये खूबसूरत दुल्हन है And she knew that she's engaged. और वो जानती थी कि उसकी सगाई हो चुकी है, That's why she's putting all her labors, इसलिए वो अपनी तमाम मेहनत कर रही है। getting ready for the wedding gown. उस ब्याह के वस्त्र के लिए वो तैयारी कर रही है। She's going to buy it, वो उसको खरीदेगी and that's what she's going to wear और वही वो पहनेगी and go with that husband in the future home. और अपने पति के साथ भविष्य के घर में जाएगी। She kept herself sanctified. उसने अपने आप को पवित्र बनाए रखा। In another message, Brother Branham said, एक और संदेश में भाई ब्रैनम ने कहा, that boy sent a spy उस लड़के ने एक जासूस भेजा to quietly look upon this girl. ताकि चुपचाप से इस लड़की को देखे। What is she doing during this 1 year? इस एक साल के अंतराल में ये लड़की कर क्या रही है? And that spy replied to him, और जासूस ने उसको जवाब दिया, she's regular with her work, वो लगातार अपने काम में लगी है and she's just laboring for one thing, और केवल एक ही चीज के लिए वो मेहनत कर रही है, to get her wedding gown. She always says, I'm getting ready for my wedding gown. और ताकि वो अपने ब्याह के वस्त्र को तैयार करे। वो बार बार ये कहती, मैं अपने ब्याह के वस्त्र को तैयार कर रही हूं। The boss's son said, that's fine. बॉस के बेटे ने कहा, बहुत बढ़िया। And I want to show you that how that marriage took place. मैं आपको दिखाना चाहता हूं फिर शादी कैसे हुई। And when he came in that chariot, और जब वो उस रथ में आया,
she just flew into his arms वो उड़ते हुए उसके बाहों में चली गई and went home to Chicago. और शिकागो घर चली गई। Is that the message? क्या ये संदेश है? You find this, brother, sister, मेरे भाई मेरी बहन, आप इस बात को पाएंगे that when that engagement took place, कि जब वो सगाई घटी, it developed into a love affair. ये आगे बढ़ करके एक प्रेम संबंध में बात पहुंच गई। Is that right? क्या बात सही है? They kept themselves pure, उन्होंने अपने आप को पवित्र बनाए रखा, the boy also and the girl also, लड़के ने भी और लड़की ने भी, but they had a genuine love for each other. लेकिन उनके लिए उनके आपस के लिए उनके पास एक वास्तविक प्रेम था। I'll just read a few more quotes. मैं कुछ और हवाले पढ़ूंगा आपके सामने। May God give me grace. काश खुदा मुझे अनुग्रह प्रदान करे। And it was said someplace किसी जगह पे ये कहा गया that in engagement you just have one ring. कि एंगेजमेंट में एक ही अंगूठी होती है। Well, I have a quote from the message. मेरे पास संदेश से एक हवाला है। Of course, it's a marriage वास्तविकता में वो शादी का है, where Brother Branham is performing the wedding ceremony, जहां भाई ब्रैनम एक शादी की क्रिया को कर रहे हैं, where he says, I will require a token. जहां नबी ने कहा कि मुझे जरूरत होगी एक चिन्ह की, In brackets, it's written, और कोष्ठक में लिखा है 2 rings are placed on Brother Branham's Bible. 2 अंगूठियां भाई ब्रैनम के बाइबल पे रखी गई। Now, if there are 2 rings in the marriage, अगर शादी में 2 अंगूठियां हैं and if you have a quote, और हमारे पास ये हवाला है, that engagement is as good as marriage, तो फिर एंगेजमेंट जो है वो शादी बराबर है। then in engagement also, it is not just the girl getting engaged to the boy is getting engaged to the girl. और एंगेजमेंट में क्या, सगाई में क्या होता है, केवल लड़की की सगाई लड़के से नहीं होती, लड़के की भी सगाई लड़की से होती है। So the rings are on both sides. तो अंगूठी दोनों ओर से आती है। I hope you're understanding this. मैं सोचता हूं कि समझ रहे होंगे आप। Now I'm going to read out another quote for you. अब मैं एक और हवाला आपके सामने पढ़ूंगा। This sort of throws a light on what happens in an engagement. और ये रोशनी डालती है उस बात पे कि सगाई में फिर क्या होता है। In the message oneness, उस संदेश एकता में paragraph 34, he says, 34 अनुच्छेद में नबी बताते हैं, now the church now is engaged to Christ अब कलीसिया की सगाई मसीह के साथ हो गई है for the wedding. शादी के लिए। The wedding has never been performed yet. अभी शादी हुई नहीं है। This is 962. ये 1962 है। It will be at the wedding supper of the Lamb. ये मेमने के ब्याह के भोज के समय होगा। So we see that the church is now engaged, तो हम इस बात को देखते हैं, कलीसिया की इस समय सगाई हो गई है, like a man engaged to his wife. जैसे एक आदमी एक पुरुष एक स्त्री के साथ सगाई करता है। What does he do while they are engaged? क्या करता है वो जब वो उनकी सगाई होती है? He is just bestowing all kinds of things, sending her presents, making her feel good. वो उस समय क्या करता है? उसके पास सामग्री को भेजता है, चीजों को भेजता है, और क्या करता है? उस लड़की को अच्छा महसूस करवाता है। Well, that's what Christ is doing to his church. और वही यही चीज मसीह अपनी कलीसिया के साथ कर रहे हैं। He's sending us gifts of the Spirit. आत्मा के वो वरदान हमें भेज रहे हैं। How can you be engaged then when you are denying these gifts exist? तो आप सगाई पे दावा कैसे भर सकते हो जब आप इन वरदानों को आप इनको नकार रहे हैं? It's the very love tokens. ये आप पाएंगे ये प्रेम के चिन्हानियां हैं। It's God's token to the church. ये खुदा का चिन्ह है कलीसिया के लिए। Jesus said so. यीशु मसीह ने ऐसा कहा, These signs shall follow them that believe. विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे। Now keep those things in mind. इन बातों को विचारों में रखिए। The church must believe every word, कलीसिया को हर एक वचन पे विश्वास करना चाहिए, every promise, हर एक वायदे पर, every iota, हर एक बिंदु पे, and claim it for themselves और अपने लिए इसको दावा भरना चाहिए, and exercise themselves in it. और उसमें अपने आप का अभ्यास करना चाहिए। If I was engaged to a girl अगर मेरी सगाई एक लड़की के साथ हुई है and I was a single man और मैं एक अकेला पुरुष था and I'd send her something, और मैं उसके पास कुछ भेजता हूं, an engagement ring, एक सगाई की अंगूठी, and she wouldn't wear it, और वो उसको ना पहने, then that shows she doesn't believe me. तो इस बात को दिखाता है कि वो मुझ पे विश्वास नहीं करती। यानी कि जब एंगेजमेंट हो और अंगूठियां पहनाई जाएं तो पहने, उतार के फिर कबड़ में ना रख दें कि अब तो ये एंगेजमेंट हुई है, जब शादी होगी तब हम पहनेंगे। You see? देखा आपने? कुछ चीजें हैं जो समझने की हैं, जो मैंने कोशिश करी कि मैं आपके सामने रखूं।
If he gives you an engagement ring, अगर वो सगाई की अंगूठी आपको देता है then you need to wear it. तो जरूरी है कि आप उसे पहने, And she wouldn't wear it, और वो उसको ना पहने then that shows she doesn't believe me. तो ये वो इस बात को दिखाती है वो मुझ पर विश्वास नहीं She करती doesn't want to be my bride. और वो मेरे दुल्हन बनना नहीं चाहती। And if Christ sends his church the gifts, और अगर कलीसिया अगर मसीह कलीसिया के पास अपने भेंटों को भेजे that he promised, जो उसने वायदा किया and they refuse them और वो को नकार दे and say they are not so, और कहें कि ऐसा नहीं है, they don't want to be the bride of Christ, तो फिर वो मसीह की दुल्हन बनना नहीं चाहते। they are espoused to some other lover तो किसी और प्रेमी के साथ उनकी सगाई हुई है and not to Christ the और bridegroom. मसीह जो दूल्हा है उसके साथ सगाई नहीं हुई। So the real church keeps the promise सो जो वास्तविक कलीसिया सच्ची कलीसिया वायदे को बना रखती है and keeps all and accepts the gifts that God sends them. और उन सब चीजों को संजो के रखती है वो तमाम वरदान भेंट जो खुदा ने उसके पास भेजे हैं। All right. बिल्कुल सही बात है। This is another action the prophet explained. ये एक और काम है जो नबी समझा रहे हैं। After the engagement is done, सगाई होने के बाद the boy sometimes bestow in love some gifts to the bride. लड़का जो है प्रेम स्वरूप लड़की को कुछ भेंट कुछ वरदान भेजता है। That is not wrong. ये गलत नहीं है। I'm reading it to you from the message. मैं संदेश आपके सामने पढ़ रहा हूं। Please don't send it. इसको मत भेजना भी। हम तो पवित्र हैं, हमें कहा गया था कि पवित्र रहो, तो उस पवित्र रहने में आप बार बार कुछ जैसे कुछ फूल का कुछ आपने गुलदस्ता भेज दिया या आपने कुछ चीज भेज दी। प्लीज मत करिए ये काम। मैंने आपके सामने मैसेज में से पढ़ा कि आप समझें कि नबी एंगेजमेंट को लेके क्या बोल रहे हैं। कई बार हमारी समझ जो कि संसारिक है और वचन की समझ मेल नहीं खाती, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके सामने पढ़ के सुनाऊं। Is it right? क्या बात सही है? When Christ is engaged to the church, जब मसीह की सगाई कलीसिया के साथ होती है, he bestows her with gifts. वो उसको भेंट देता है। You see, the bridegroom doesn't send gifts to other girls. आप देखिए दूल्हा जो है दूसरी लड़कियों के पास भेंट नहीं भेज रहा, He only sends it to that one particular girl. एक खास लड़की के पास ही वो भेंट भेज रहा है। Why is he doing that? वो ऐसा क्यों कर रहा है? To make her realize that we are engaged. इस बात को समझाने के लिए उसको कि हमारी सगाई हो चुकी है And soon we'll be married. और शीघ्र हमारी शादी हो जाएगी। When God sends his gifts to his church, जब खुदावंद मसीह अपने भेंटों को कलीसिया के पास भेजते हैं, the church has to receive those तो gifts. जरूर है कलीसिया उन भेंटों को ग्रहण करे, Cherish those gifts. उनमें आनंद मनाए, And when she accepts those gifts, और जब वो उन भेंटों को कबूल करती है, Christ feels nice. मसीह को अच्छा महसूस होता है, He feels proud. उसको बहुत गर्व लगता है। Sometimes he asks, कभी कभी पूछता है, how did you like it? अरे तुम्हें कैसा लगा मेरा भेंट? I had sent it. मैंने भेजा था इसे। It was me who sent that cake. ये मैं था जिसने उस केक को भेजा था। It was me who sent that flowers. अरे ये मैं था जिसने उस फूल को भेजा था। It was me who sent that man. ये मैं था जिसने उस पुरुष को भेजा था। It was me who sent that gift to you. ये मैं था जिसने उस भेंट को तुम्हारे पास भेजा। How did you like it? तुम्हें कैसा लगा? And the bride says amen. और दुल्हन कहती है आमीन। Why does she do that? ऐसा क्यों करती है वो? Because it's a sign. क्योंकि एक चिन्ह है। He's sending the gift and gift repeatedly to that girl because soon he'll take her to her future home. और लगातार बार-बार उस लड़की के पास वो भेंट भेजता रहता है। क्यों? क्योंकि वो शीघ्र ही उसको अपने भविष्य के घर में लेके जाएगा। Can you say amen? क्या आमीन कह सकते हैं आप? No matter in what condition she was, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किस परिस्थिति किस हालत में वो थी, but finally he takes her. लेकिन आखिरकार वो उसको लेके जाता No है। matter in what position we are, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किस स्थान पे हम हैं, what kind of mud hole we have been coming from, हम किस मिट्टी के घर से निकल के आ रहे हैं, but by his grace, लेकिन उनके अनुग्रह से he called your name. उसने आपके नाम को पुकारा। He called my name. उसने मेरे नाम को पुकारा। Oh, what a day it was when I heard my name. ओ क्या खूब दिन था जब मैंने अपने नाम को सुना। When we came to understand, जब इस बात की समझ पे we पहुंचे, are his choice. हम उसकी पसंद हैं। No matter what is happening outside, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बाहर क्या चल रहा हो, somebody lives, somebody dies. कोई जिए कोई मरे। Sometimes it's cloudy and raining, sometimes it's sunshine. कभी कभी बादल है बारिश हो रही है, कभी कभी सूरज निकला हुआ है। But these Christians are not living in outer court. Christians are not living in outer court. लेकिन ये मसीह जो है बाहरी आंगन में नहीं रह रहे, They are living in that third chamber. वो इस तीसरे कमरे में रह रहे हैं।
where the Shekinah is shining. जहाँ शकीना महिमा चमक रही That है, glory never fades. वो महिमा कभी धूमिल नहीं होती, Because they know क्योंकि वो जानते हैं the high priest sends for them. उनका महायाजक उनके लिए भेंट बेचता है, He has advocated for them उसने उनके लिए वकालत का काम किया है by his shed blood, अपने बहाए हुए लहू के द्वारा, which was poured upon the mate. जो कि जोड़े पर उंडेला गया। And she is the odd speckled bird. और वो है बहुत ही अजीब सी दिखने वाली चितकबरी Because चिड़िया, the life of her mate is on her. क्योंकि उसके जोड़े का जीवन उसके ऊपर है। The day a girl gets engaged, जिस दिन लड़की की सगाई होती है, she becomes the odd speckled bird. वो बन जाती है विचित्र, वो स्पेकल बर्ड। She is not with the rest of the girls. वो बाकी लड़कियों के साथ नहीं है, Now she is another category. अब वो एक और श्रेणी है। She has been engaged to a man एक आदमी से उसकी सगाई हो गई है, who she is going to get married जिससे to. वो आगे को शादी करेगी। Can you say amen? क्या आप आमीन कह सकते हैं? And brothers and sisters, और मेरे भाई मेरी बहन, we are engaged to this Christ. हमारी सगाई इस मसीह के साथ हुई है, And by future revelation, we also understood और भविष्य के मुकाशफे से हम इस बात को भी समझे हैं। we are married, हमारी शादी हो गई है and now we are getting ready for the wedding supper. और हम तैयार हो रहे हैं ब्याह के भोज के लिए। Can you say amen? क्या आप आमीन कह सकते हैं? But before he marries an individual, he first checks him whether he is chaste or sanctified or not. और इससे पहले उस व्यक्ति से वो शादी करे, उससे आगे को घर बसाए, उसके साथ शादी करे, वो पहले इस बात को पक्का करते हैं, क्या वो मेरे लिए शुद्ध, क्या वो मेरे लिए पवित्र बनी हुई है कि नहीं। Every gift he sends हर एक भेंट जो वो भेजता है, is a test. ये एक परीक्षा है। After sending the gift, भेंट को भेजने के बाद he asks the next question. वो अगला सवाल पूछता है, Did you like it? क्या तुम्हें ये पसंद आया? Sometimes she fails to call. कभी कभी वो उसको कॉल करने में चूक जाती है। Then he calls and said, "You got my gift?" तब वो कॉल करके पूछता है उससे, क्या तुम्हें मेरी भेंट मिल गई? Oh yes, I just forgot. हाँ मुझे मिल गई, मैं भूल गई। Yes, I thought you'd call. मैंने सोचा था कि तुम मुझे कॉल करोगी। I'm speaking something मैं कुछ बोल रहा हूँ to some people. कुछ लोगों के सामने। I thought you'd call, मैं सोचा था कि तुम मुझे कॉल करोगी, but you didn't, so I thought maybe I'll call. तो क्योंकि तुमने कॉल नहीं किया, इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैं तुम्हें कॉल कर दूं। Are you understanding this? क्या समझ रहे हैं आप इस बात को? My precious brother and sister, मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, we have to be very thankful. हमें बहुत ज्यादा धन्यवादित होना चाहिए। I have seen churches getting revival. मैंने कलीसियाओं को बेदार होते देखा, I have seen churches losing their revival. मैंने कलीसियाओं को उनकी बेदारी होते देखा, And I have seen both the conditions. और मैंने दोनों हालतें देखी हैं। I'll just say one thing. मैं केवल मात्र एक बात कहूंगा, When God sends a gift, जब खुदावंद एक भेंट, एक वरदान भेजे, when God sends something to the people, जब खुदावंद लोगों के पास किसी चीज को भेजे, it would be in a very good state if they accept it, and not just accept it, be thankful for it. और होना यह चाहिए कि उन्हें उस चीज को ग्रहण करना चाहिए, केवल ग्रहण ही नहीं करना चाहिए, उसके लिए बहुत धन्यवादित होना चाहिए। What happens if she rejects that gift? क्या होगा अगर वो उस भेंट को, उस वरदान को रिजेक्ट कर दे? The bridegroom will understand by an indirect way she's not interested in me. तो दूल्हे को ये बात किसी रीति से समझ में आ जाएगी कि ये मुझ में दिलचस्पी रखती नहीं है। I hope you're understanding it. क्या समझ रहे Just हैं? recently on Christmas, a message, God's wrapped gift. अभी क्रिसमस के टाइम पे ही हमने एक संदेश सुना, खुदावंद का भेजा हुआ, लपेटा हुआ एक वरदान। God's gifts always find their places. खुदावंद के वरदान हमेशा अपने स्थान प्राप्त करते हैं, Always. हमेशा। And those gifts are supposed to be received. और जरूरी है कि वो जो वरदान है वो ग्रहण किए जाएं, And we should be the first one और हमें वो पहला होना चाहिए to call him. कि हम उनको कॉल करें। Thank you. आपका धन्यवाद हो, It was a wonderful gift. ये बहुत ही प्यारी भेंट थी। Then he'll send some more. तब वो कुछ और भेंटों को भेजेंगे। I hope you're catching the message. मैं आशा करता हूँ संदेश पकड़ We रहे need हैं। to be thankful. हमें जरूरी कि हम धन्यवादित हों। Are you understanding the message? क्या संदेश समझ रहे हैं My precious brother, मेरे प्यारे भाई? this is another aspect of engagement. ये सगाई का एक और पहलू है। Then there is another aspect फिर एक और पहलू है which is depicted in the songs of Solomon. जो कि श्रेष्ठ गीत में दर्शाया गया है। Brother Branham said in Future Home, भाई ब्रैनम ने भविष्य वाले घर वाले संदेश में कहा, this bride you find in songs of Solomon, इस दुल्हन जिसको आप पाते हैं श्रेष्ठ गीत में, she has been engaged to a shepherd boy. उसकी सगाई, इस लड़की की सगाई एक चरवाहे के लड़के से हुई है। And this is why she's asking a question. इसलिए वो सवाल पूछ रही है, Where are you in the noon time that I can come?
दोपहर के समय तुम कहाँ हो कि मैं आ सकूं? And then he replies, where the sheep are, और तब वो जवाब देके कह रहा है जहां पर भेड़े हैं, that's where I will be found. यह है वो स्थान जहां मैं मिलूंगा, There 2 or 3 are gathered in my name. जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, That's where I am. मैं उनके बीच में हाजिर होता And the हूं। real bride runs to that place. और वास्तविक दुल्हन ऐसे जगह पे भागती है पहुंचने के It's लिए। not a church. ये चर्च नहीं है, It's a banqueting house. ये एक भोज का घर है। It's a house of God's love with his bride. ये खुदावंद का प्रेम का घर है उसकी दुल्हन के लिए। His banner over me is love. उसका झंडा मेरे ऊपर प्रेम का है। That's why it says, इसलिए वो कहता है, I am the rose of Sharon. मैं शारोन का गुलाब हूं, I am that lily of the valley. मैं उस तराई का शोषण हूं। And then further down it says, और आगे वो कहता है, as the lily among the thorns, जैसे कांटों के बीच में शोषण होता है, so is my bride amongst the daughters. इसलिए इसी तरह से बेटियों के बीच में मेरी दुल्हन है। And then she replies, और तब वो जवाब देती है, as the apple tree in the woods, जैसे जंगल में सेब के पेड़ के समान, which stands apart from the rest, जो बाकियों से बिल्कुल पृथक रहता है। my husband, my bridegroom stands apart. मेरा दूल्हा, मेरा पति पृथक खड़ा रहता है। Why? Who's singing these songs? ये गीत कौन गा रहा है? An engaged couple. एक सगाई हुआ हुआ जोड़ा। We are engaged to a shepherd man. हमारी सगाई एक चरवाहे जन से हुई है। I am the good shepherd. मैं भला चरवाहा हूँ, I am that great shepherd. मैं महान चौपान हूँ। The Lord is my shepherd. प्रभु मेरा चरवाहा है। And being engaged to that shepherd, और उस चरवाहे के साथ सगाई होने के नाते finally the bride comes to a place. आखिरकार दुल्हन एक ऐसे स्थान पे पहुंचती है, I can hear his voice मैं उसके शब्द सुन सकती हूँ, leaping down the mountains. पहाड़ों से छलांग लगाते हुए। The rain is over. बारिश समाप्त हो गई, The winter is past. सर्दी बीत गई। I can hear the turtle dove singing. मैं उस पिंडुक को गाते सुन सकता हूँ, And I can see the buds coming on the trees. और वृक्षों पे मैं कोपले लगते देख सकती हूँ, And I can hear his voice. और मैं उसके शब्द को सुन सकती हूँ। Come, my love. मेरी प्रिय तू आजा, Come, my bride. मेरी दुल्हन तू आजा, Arise उठ and come away. और मेरे पास चली आ। That's the age we are living in. यह है वो युग जिसमें हम रह रहे हैं। That's the time we are living in, brother, sister. मेरे भाई मेरी बहन, ये वो समय जिसमें हम रह रहे हैं। We really thank God. हम वास्तविकता में खुदा का धन्यवाद करते हैं। There's a true people कुछ सच्चे लोग हैं who remain true to their Lord. जो कि बिल्कुल सत्यवान बने होते हैं अपने प्रभु के लिए, Sanctified, पवित्र, holy. शुद्ध। Sanctification is a huge subject. पवित्रीकरण एक बहुत बड़ा विषय है। Sanctification in flesh, शरीर में पवित्रीकरण, sanctification in spirit, आत्मा में पवित्रीकरण, sanctification in the soul. और प्राण में भी पवित्रीकरण। Oh, this sanctification goes everywhere. ये पवित्रीकरण हर जगह जाता है, And that is through the blood of Jesus Christ. और ये प्रभु यीशु मसीह के लहू की मार्फत है, That you shun apart those things which are in the world. ताकि आप उन चीजों को जो कि संसारिक है उनको दूर हटा दें, Because you are preparing for something. क्योंकि आप किसी चीज के लिए तैयार हो रहे हैं। When you are going to take a flight or a train, जब आप एक फ्लाइट या ट्रेन लेने के लिए जाते हैं, फ्लाइट में मैं ज्यादा अच्छा समझा सकता हूँ क्योंकि ट्रेन में ऐसा नहीं होता। वंदे भारत में होता है, हाँ वो उसमें होता है, क्योंकि जो छोड़ने वाले हैं वो वहां अंदर बैठ नहीं सकते। वो जोर से एक घंटी बजती है, दरवाजा बंद हो जाएगा। कानपुर में ऐसे ही हुआ कि कुछ बैठे रह गए, कुर्ते पजामे में पान चबाते हुए आए थे, रात के टाइम छोड़ने अपने अजीजों को, डब्बा बंद हो गया। अगला स्टॉप दिल्ली था। उन्होंने कहा रोक, उन्होंने कहा बाकी ट्रेन की तरह डब्बे वो दरवाजे खुल जाएंगे, दरवाजा खुला नहीं। अब घबरा गए, एक तो दुगना पैसा लगा, फिर दे दबा के लौटे तो उन्हें एक्सपीरियंस मिला कि भाई इस ट्रेन के दरवाजे ऐसे बंद होते हैं, खुल नहीं सकते फिर, तो इसलिए इसमें ऐसे मत चढ़ जाओ। लेकिन मैं एक बात समझाने के लिए, when you are taking a flight, जब आप एक फ्लाइट लेते हैं, the people who are seeing you off, जो लोग आपको छोड़ने आए हैं, see the sea of party is always bigger than the one who's going. आप देखिए जो छोड़ने वाली पार्टी होती है वो बड़ी होती है और जो जा रहा है वो एक आधी होते हैं। एक दिन भाई निश्चल जानते हैं, मैं कानपुर में मीटिंग के बाद रात को प्रयागराज चलती थी, तो उसमें मैं डब्बा में बैठा, तो एक अम्मा थी जो हज के लिए जा रही थी।
तो उनको इस साड़ी के ऊपर सब तरफ गुलाब के फूल लगा के रखे हुए थे। अब एक अम्मा जाने वाली, छोड़ने वाले कम से कम 50 लोग, और गलती से वो डब्बा गलत हुआ तो वो 50 के 50 लोग उस अम्मा को लेके डब्बे से डब्बा बदल रहे हैं। एक अजीब किस्म का सीन, और टाइम हो गया कि ट्रेन चले। तो हमने देखा इस चीज को, छोड़ने वाले बहुत होते हैं, जाने वाले थोड़े कम होते हैं। क्या होता नहीं होता? नाउ व्हाट हैपेंस when you come to the airport, I'll take airport for example, मैं एयरपोर्ट के हवाई अड्डे की बात करता हूं। then you say God bless you, तब आप उनसे छोड़ने वाले से कहते हैं खुदा आपको बड़ी बरकत दे भाई, क्योंकि टिकट आपके पास है, कि वहां खड़ा एक, और डिजी यात्रा भी अब पहचानेगी नहीं, डिजी यात्रा भी नहीं पहचानेगी, और वो जो संतरी खड़ा है वो भी नहीं पहचानेगा। वो आपका टिकट मांगेगा, आपका चेहरा देखा, आपका आईडी देखा, और उसके बाद आपसे कहा ना यू कैन गो, अब आप जा सकते हैं। और हम, उन्होंने कहा सर अब आप यहां पे रहिए, ये जगह आपके लिए यहां तक थी, आगे के लिए अब यही जाएं। कुछ समझ मारी आपके? यू आर सेपरेटेड, आप अलग कर दिए गए। यू आर सेपरेटेड फ्रॉम योर प्रीवियस ड्वेलिंग प्लेस एंड द प्रीवियस फ्रेंड्स और वॉट एवर, सो दैट नाउ यू कैन गो टू अ न्यू प्लेस। आप जहां रह रहे थे या आप जिनके साथ थे वहां से अलग कर दिए गए, ताकि अब आप एक नए स्थान पे जा सकें। Marriage is like this. शादी इस प्रकार से है। You have a lot of friends. आपके बहुत सारे दोस्त हैं। The boy had a lot of friends, the girl had a lot of friends. लड़के के बहुत सारे दोस्त थे, लड़की के बहुत सारे दोस्त थे। But now, लेकिन अब thank you. बाय बाय, थैंक यू, God bless you. खुदा बड़ी बरकत दे आपको। We got engaged today. आज हमारी सगाई हो गई है। Now the doors are shut. अब द्वार बंद हो गया है। Friendship was friendship. दोस्ती दोस्ती रहेगी। But now this is another relationship. लेकिन अभी एक और संबंध है। It's a very serious relationship. ये बहुत ही गंभीर संबंध है, Which God has established. जो खुदा ने स्थापित किया है। So now I'm saying tata to them, you are saying tata to those. तो मैं इन लोग से, जो मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, उनको टाटा कर रहा हूं। आप अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से टाटा करें। मतलब कहने का बातें होती हैं, लेकिन वो जो लेवल थी बात की वो खत्म हो गई, अब वो बातें नहीं हैं। नाउ यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन ईच अदर। अब आप एक दूसरे के लिए केंद्रित हो रहे हैं। दैट इज वॉट एंगेजमेंट इज। ये है सगाई। इन मैकेनिकल टर्म्स, मैकेनिकल मशीनी भाषा में, इफ यू हैव 2 कार्ट व्हील्स, अगर आपके पास 2 चक्के हैं, 2 गरारियां हो, यू नो विद दो स्पोक्स, समथिंग लाइक दैट, आप जानते हैं वो चक्रियां जिसमें गरारियां होती हैं, ब्रिंग देम टुगेदर, उनको एक साथ लेके आए, जॉइन देम, उनको एक साथ जोड़ दें। नाउ व्हेन दिस मूव्स, अब जब ये गरारी घूमती है, दिस आल्सो मूव्स, तो दांतों, जो उसमें दांते फंसे होते हैं, तो ये वाली गरारी भी घूमने लगती है। वी यूज द वर्ड नाउ द रिंग्स, आई मीन दीज 2 व्हील्स आर एंगेज्ड। अब इस शब्द को इस्तेमाल कर, अभी ये 2 चक्रियां, इनकी सगाई हो गई। When this moves, this moves. जब ये घूमता है तो ये भी घूमती है। पहले ये अलग घूमता था, ये अलग घूमता था, लेकिन now they move together. अब एक साथ घूमते हैं। That is what engagement is. यही सगाई है। When you're engaged to this ring, जब आपकी सगाई इस छल्ले से हो जाती है, then how he moves, now you move. जैसे ये घूमते हैं या जैसे ये चलते हैं, आप भी वैसे ही चलते हैं। Every movement he makes, now you make. हर एक मूवमेंट वो करते हैं, वही मूवमेंट आप भी करते हैं। You are now engaged to Christ. अब आपकी सगाई मसीह के साथ हो गई। So now you are not moving separately. तो अब आप कहीं अलग थलग नहीं चल रहे, You're moving with him. आप उसके साथ ही चल रहे हैं। As I have said, जैसे मैंने कहा था, qualifications don't matter. क्वालिफिकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। But once engaged, एक बार आपकी सगाई हो गई, you are in love with each other, आप एक दूसरे के साथ प्रेम में हैं, and you respect each other. और एक दूसरे का आप आदर करते हैं। Husbands respects their wife, जो पति है अपनी पत्नी का आदर करते हैं, but wife respects her husband. लेकिन पत्नी अपने पति का आदर करती है। She cannot tolerate somebody despising her husband. वो इस बात को सह नहीं सकती कि कोई उसके पति को तुच्छ जाने। That's right. A right kind of wife, a girl, will have this in her heart. एक सही किस्म की जो लड़की होगी, उचित किस्म की लड़की जो होगी, उसके दिल में यही होगा। Yes, right. There might be many girls, बहुत सारी लड़कियां होंगी, and some joke might be said on some boy, और हो सकता है किसी लड़के को लेके मजाक रखा गया हो, and it's fine. और ठीक है, But for that girl, it's not fine. लेकिन उस लड़की के लिए ये बात ठीक नहीं है। No, it can never be. She turns red, and why did they say like this? और जब ऐसा मजाक बोला जाता है, लड़की का मुंह लाल हो जाता है, कहती है ऐसा क्यों बोला गया। That's how happens with the real bride. यही होता है एक उचित दुल्हन के साथ। Why did they say this for my husband Christ? मेरे मसीह, मेरे
दूल्हे मसीह के लिए ऐसा क्यों कहा? She has a jealousy in her heart. उसके अंदर एक जलन उठती A है, spiritual jealousy एक आत्मिक जलन for her husband. अपने पति के लिए, And her husband has a spiritual jealousy for her. और पति के अंदर एक आत्मिक जलन होती है अपनी पत्नी के लिए, Yes. They possess, because future, क्योंकि आगे भविष्य में they possess each other. एक दूसरे पे वो कब्जा करते That's हैं. of course another message. ये फिर एक दूसरा संदेश है. So this is in a right kind of a marriage. तो ये एक उचित किस्म के विवाह में होता है. And I think all those things have happened in the life of these two young people. अब मैं सोचता हूँ ये तमाम बातें इन दोनों जवानों के जीवन में हुई होंगी. Is that right, brother? क्या बात सही है मेरे भाई? And it is my prayer और ये मेरी दुआ है that may this engagement flourish into a marriage. कि ऐसा हो कि ये जो सगाई है ये आगे बढ़ करके शादी में तब्दील हो. Many things are a mystery, कई बातें भेद होती हैं, but they open in their time. लेकिन वो अपने समय में फिर खुलती हैं. And by the grace of God, we are seeing these mysteries happening amongst us. और खुदावंद के अनुग्रह से हम इन भेदों को अपने बीच में होता हुआ देख रहे हैं. God really bless you खुदावंद आपको बहुत आयत से बरकत दे when these two young people are going to get engaged. जब ये दो जवान अब सगाई में आगे बढ़ेंगे. Yes. And we are really happy for this, और हम वास्तविकता में बहुत ज्यादा खुश हैं इसके लिए that when we do this ceremony, कि जब हम इस सेरेमनी को करते हैं we remember that engagement we had with Christ हम याद करते हैं उस सगाई को जो हमारी मसीह के साथ हुई, to be a chaste virgin to him. कि उसके लिए हम एक पवित्र कुंवारी दुल्हन हो. Amen. And Caleb would be sending some things to her, nahi? और खेलब फिर उसके लिए कुछ भेजेगा ना, And she will also accept it. और वो भी उसको कबूल करेगी. Yes. जी हाँ, In a proper engagement, these things are there. एक उचित सगाई में ये चीजें होती हैं. Yes, he sends her, वो उसे भेजता है, but he remains pure. लेकिन वो पवित्र बना रहता है. She remains pure, वो पवित्र बनी रहती है, but he sends her. लेकिन वो उसके पास भेजता है. Christ sends his gifts to us. मसीह अपने भेंट हमारे पास भेजते हैं. I remember one particular American family. मुझे याद आता है एक अमेरिकन परिवार, There was some problem between husband and wife, पति पत्नी के बीच में कुछ टंटा हुआ and they were not seeing each other for many days. और बहुत दिन से एक दूसरे को देख नहीं रहे थे, एक दूसरे का चेहरा नहीं देख रहे थे. This boy is now in his father's house, अब ये लड़का अपने बाप के घर में है and he calls her. और वो उसको कॉल करता है. She picks up the phone वो फोन उठाती है and talks briefly and stops it. और थोड़ी बात करके फिर फोन रख देते हैं. She just talked a brief and then she's put the phone down. लड़के ने कहा कि बहुत ही थोड़ी बात करी मुझसे और फिर फोन रख दिया. The dad said, बाप ने कहा but she picked up. लेकिन उसने फोन तो उठाया, She picked up the phone. उसने फोन तो उठाया. Finally, everything became fine. बाद में आखिरकार सब चीज ठीक हो गई. Amen. In our particular case, हमारे मामले में I'll say the opposite. मैं इसका उल्टा कहूंगा, We called him and he picked up the phone. हमने कॉल किया और उसने फोन उठा लिया. Isn't it wonderful, brother? क्या ये अद्भुत बात नहीं है मेरे भाई? Whenever we are in any problem, जब कभी हम किसी समस्या में होते whenever we हैं, cry with a true heart, जब सच्चे मन से हम पुकारते हैं, whenever we are desperate in our prayer, जब कभी हम अपनी प्रार्थना में व्याकुल होते हैं, oh God, ओ खुदाबंद, and he says, I am here. वो कहते हैं मैं यहाँ मौजूद हूँ. He always picks up the call हमेशा वो फोन उठा लेते हैं and he's always available और वो हमेशा मुहैया होते हैं, because he's in love with us. क्योंकि हमारे साथ वो प्रेम में है. Blessed be the name of the Lord खुदावंद का नाम जलाल पाए. and the gifts he has bestowed upon us, और जो भेंट उन्होंने हमें दी है, for which we are not worthy, जिसके लिए हम योग्य नहीं हैं, but we really thank God for them. लेकिन उन चीजों के लिए हम वास्तविकता में खुदा का धन्यवादित हैं. That's a once good sign ये एक बढ़िया चिन्ह है that we are going for the wedding supper. कि हम ब्याह के भोज में जा रहे हैं. That gift was not sent for the churches. हाँ, वो भेंट वो वरदान कलीसियाओं के लिए नहीं भेजी गई, It was only sent for the bride. केवल दुल्हन के लिए भेजी गई. Though there were other girls there यद्यपि और लड़कियां वहां मौजूद थीं who saw the operation of that gift. जिन्होंने उस गिफ्ट का कार्यान्वित होना देखा. Please, always I say it again and again. मैं इस बात को बार बार कहता हूं, When he operated the sign of Messiah in Mamre, जब ममरे में उन्होंने मसीहा का चिन्ह कार्यान्वित किया, it was never in Lot's camp. ये कभी भी लूत की छावनी में नहीं था. It was for Abraham and Sarah, the elect. ये इब्राहिम और सारा जो चुने हुए थे केवल मात्र उनके लिए था. So when that sign was operated in this age, तो जब वो चिन्ह कार्यान्वित हुआ इस युग में, it was actually to attract the real bride, ये वास्तविकता में इसलिए था ताकि जो वास्तविक दुल्हन है वो आकर्षित हो जाए, so that she can receive the power to conceive. ताकि वो उस सामर्थ को पा सके गर्भ धारण की. That gift was not sent for Lot's wife. ये जो भेंट है वरदान लूत की बीवी के लिए नहीं भेजी It was गई. not sent for Hagar. ये हाजरा के लिए नहीं भेजा गया. It was sent for Sarah केवल मात्र सारा के लिए भेजा and गया Abraham, और इब्राहिम के लिए. according to the time of life. जीवन के ऋतु के अनुसार
God's gifts always find their places. खुदावंद के जो वरदान है हमेशा अपने स्थानों को प्राप्त करते The हैं। wrapper may not be very good, हो सकता है ऊपर का जो कागज है बहुत सुंदर ना हो, but how does it matter? लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? What matters is that gift which is inside that wrapper. लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि उस कागज के अंदर क्या भेंट है, क्या वरदान है। The wrapper is actually sent to befool others. हाँ, रैपर जो है ऊपर लपेटने वाला जो कागज है वो तो दूसरों को बेवकूफ बनाने के लिए रखा जाता है That they won't even look at it. कि वो उसकी ओर दृष्टि भी ना डाले। He hides in simplicity. वो साधारणता में छुपते हैं। But when the bride goes beyond the wrapper, लेकिन जब दुल्हन उन कागज के टुकड़े के परे जाती है, it is very costly, very precious gifts. तो ये बहुत ही महंगा और बहुत ही बहुमूल्य भेंट है। I remember that line Brother Branham saying मुझे याद आती है वो पंक्ति जो भाई ब्रैनम ने कहा regarding the third pull and the new ministry. तीसरा खिंचाव और नई सेवकाई को लेकर के। You know what he said? आप जानते हो उन्होंने क्या कहा? Like a small boy waits for Christmas. जैसा एक छोटा लड़का जो है क्रिसमस का इंतजार करता है, I'm waiting for this gift. मैं इस वरदान का इंतजार कर रहा हूं। Read that message, new ministry. उस संदेश को पढ़े मेरी नई सेवकाई। He said, I'm waiting like a small boy. उन्होंने कहा मैं एक छोटे लड़के की तरह इंतजार कर रहा हूं। क्यों बोला? Because you know, America, Christmas is a big thing. क्योंकि आप जानते हैं अमेरिका में क्रिसमस एक बहुत बड़ा That's चीज the होती है। time when they load gifts to each other and they put gifts on the trees and you know all that happens. ये वो समय होता है जब वो एक दूसरों को भेंट देते हैं, आदान प्रदान करते हैं और पेड़ों पे वृक्षों में भी गिफ्ट रखते हैं। और बच्चे को मालूम मुझे बहुत कुछ मिलेगा, क्रिसमस आ रहा है, that means he's now waiting for those gifts. इसका मतलब वो भेंटों के लिए इंतजार कर रहा He है। said that kind of anticipation I have for this third pull. नबी कह रहे हैं इसी प्रकार का एक एंटिसिपेशन, मतलब इसी प्रकार की मेरे अंदर एक व्याकुलता है उस तीसरे खिंचाव के लिए। What about the bride? दुल्हन के बारे में क्या कहेंगे? Watch the third pull then. तब तीसरे खिंचाव को देखना। Amen. The final gift आमीन, वो अंतिम भेंट and final solution और अंतिम समाधान for the rapture of this bride. इस दुल्हन के रैप्चर के लिए। God really bless you, खुदावंद आपको वास्तविकता में बड़ी बरकत Brother दे, Caleb and Sister Sharon, भाई केलेब और सिस्टर शैरन, and may God bless this engagement is my prayer. और काश खुदावंद बड़ी बरकत दे इस सगाई में, ये मेरी दुआ है। Let's pray. आइए दुआ करेंगे। धन्यवाद देते हैं खुदावन की आपने बड़ी मदद करी कि ये दो जवान आज यहाँ इकट्ठा हों और इन टूटे फूटे अल्फाजों में कुछ बात समझें कि क्या मकसद है एक एंगेजमेंट का। ये एक अलहदगी है, ये एक पवित्रीकरण है जिसमें कि अब ये एक दूसरे के प्रति घुसेंगे कि अपने आप को, अपने शरीर और आत्मा प्राण को पवित्र रखें जब तक कि इनकी शादी एक सेरेमनी के रूप में ना हो। प्रभु आप इनकी बड़ी मदद करें और खुदावन ये प्रेम संबंध जो आपने बनाया है, इसी में नहीं और भी जो एंगेजमेंट्स हुई हैं और शादियां जो हुई हैं और हो रही हैं, ये प्रेम दिन ब दिन बढ़ता जाए। मैं दुआ मांगता हूं उन लोगों के लिए जो शादीशुदा हैं, हम सब के लिए, कि वो प्रेम जो हमारा शादी के टाइम था उससे कहीं बढ़कर प्रेम आगे बढ़े हस्बैंड्स और वाइफ्स के बीच में। मेरी आपसे दुआ है खुदावन आप रहम करें। मेरी दुआ है आप इस जोड़े को बड़ी बरकत दें। अब आप आएं और इस एंगेजमेंट को आप ही करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम सब खड़े हो जाएं और मैं चाहूंगा ब्रदर केलेब आप प्लीज सामने आए एंड सिस्टर शारोन आप भी सामने आए। एक छोटी सी दुआ करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपका बड़ा धन्यवाद देते हैं। ब्रदर केलेब और सिस्टर शारोन ने अपना मन बनाया, फैसला किया कि आपके हुजूर इस वेदी के सामने, आपके लोगों के समक्ष वो एक दूसरे के साथ मंगनी के वायदे करें। मेरी दुआ है प्रभु यीशु मसीह इस कार्य को आप ही संपन्न करें और हर बुराई से आप ही बचाएं। मेरी दुआ है खुदावन कि आप आएं और इस कार्यक्रम को अपने हाथ में लें। प्रभु यीशु मसीह आपके लहू के नीचे आते हैं और मांगते हैं कि आप इस काम को करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जमात बैठ सकती है। हे प्रियो, खुदा उसकी कलीसिया के समक्ष आज ये दो जवान भाई केलेब और बहन शारोन एक मंगनी के इरादे से यहां इकट्ठा हुए हैं। मैं इन दोनों जवानों को प्रभु यीशु मसीह के जिंदा कलाम एवं मलाकी 4 एवं प्रकाशित वाक्य 10:7 के दूत
अर्थात भाई विलियम ब्रैनम के प्रचार्य संदेश के अनुसार इन्हें जता देना चाहता हूं कि मंगनी के अहद पैमान विवाह बराबर हैं अथवा एक बार मंगनी होने पर यह टूट नहीं सकती। इसलिए मैं भाई केलब और बहन शारोन से निवेदन करूंगा कि बड़ी सूझबूझ के अनुसार आप इसमें आगे बढ़े और खुदा को हाजिर नाजिर जानते हुए वायदे करें। आमीन। मैं भाई टाइटस को बुलाना चाहूंगा कि आप एक छोटी दुआ करें कि इन बच्चों को बुद्धि मिले इससे पहले कि आगे बढ़ें। प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम का हम लाख लाख शुक्र और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, खास तौर से आज के दिन के लिए प्रभु जी। आपने इन दो जवानों के लिए प्रभु जी ये दिन को आने दिया प्रभु जी, जब ये आज आपकी वेदी के सामने उपस्थित है प्रभु जी, और एंगेजमेंट करना चाहते हैं प्रभु जी, वायदे करना चाहते हैं प्रभु जी कि आगे चल कर के ये पवित्र ब्याह में बनने पाए प्रभु जी। ओ खुदा बाप, हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है प्रभु जी, इन्हें वचन के अनुसार, मैसेज के अनुसार लीड करिए प्रभु जी, इन्हें समझ दीजिए, बुद्धि दीजिए, अपने जीवन को कैसे पवित्र रखना है, कैसे पवित्र चलाना है। जैसे पास्टर भाई ने बताया प्रभु जी, मेन चीज़ है अपने आप को सेंटिफाइड रखना, पवित्र रखना प्रभु जी। होने दीजिए कि अपने आप को पवित्र रखें प्रभु जी, और आगे चल करके जब आपने जो दिन ठहराया है प्रभु जी, उस दिन प्रभु जी ये ब्याह के बंधन में बनने पाए प्रभु जी। इन्हें बड़ी बरकत दें, बड़ी आशीष दीजिए प्रभु जी, आपने पवित्र आत्मा के द्वारा इन्हें लीड करें प्रभु जी और गाइड करें प्रभु जी। दोनों घरानों को, भाई विमल और भाई लाजरस घरानों को बड़ी बरकत दें, खास तौर से हमारे पास्टर भाई को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे, इतने अच्छे एग्जॉर्टेशन के लिए प्रभु जी, इतनी अच्छी सीख के लिए प्रभु जी जो भाई ने इस अवसर के ऊपर दी है प्रभु जी। जितने भाई बहन यहाँ सबको बड़ी बरकत दे धन्यवाद के साथ, और इन दोनों बच्चों को आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को बड़े धन्यवाद साथ यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू माय ब्रदर। भाई केलेब, क्या आप बहन शारोन से विवाह करने का मन बना चुके हैं? जी हाँ। गॉड ब्लेस यू। बहन शारोन, क्या आप भाई केलेब से विवाह करने का मन बना चुकी हैं? जी हाँ। गॉड ब्लेस यू। एक दूसरी तरफ मुड़ें और एक दूसरे का हाथ पकड़ लें और मेरे साथ भाई बोलें, मैं भाई केलेब मैं भाई केलेब तुझ अपनी निकट कुटुंबनी तुझ अपनी निकट कुटुंबनी बहन शारोन को भाई बहन शारोन को आज दिनांक 27 दिसंबर आज दिनांक 27 दिसंबर प्रभु के वर्ष सन 2024 में प्रभु के वर्ष सन 2024 में प्रभु यीशु मसीह और उनकी जीवित कलीसिया के सामने अपनी मनपसंद पत्नी बनाने के इरादे से तुझसे वायदा करता हूँ कि यदि तू मुझसे शादी करेगी तो मैं तुझी को अपनी मनपसंद पत्नी करके तुझसे मिला रहूंगा, तेरी देखभाल करूंगा और अपना सब कुछ तुझी को दूंगा, ये जानते हुए कि ये एक पाक रिश्ता है। मैं अब इधर उधर ना ताकूंगा, अपना चाल चलन स्वच्छ रखूंगा और समय आने पर तुझ ही से विवाह करूंगा। वो वंश जो आगे चलकर हमसे उत्पन्न हो उसकी देखभाल करूंगा। वरन प्रभु यीशु मसीह के सत्य के मार्ग में उनकी परवरिश करूंगा और अपने परिवार के लिए एक आदर्श बनूंगा, चाहे ऊंच में चाहे नीच में तेरा साथ दूंगा और जीवन भर उस अनंत शालोम के समक्ष तेरे साथ चलूंगा। यहोवा यिरे, यहोवा राफा, यहोवा निस्सी, यहोवा शालोम, यहोवा रा, यहोवा सिदकेनु एवं यहोवा शम्मा की पारिवारिक आशीषें हमें मिले। आमीन। गॉड ब्लेस यू। हाथ पकड़े रहें और अब बहन आप बोलें। जिसका नाम अल्फा और ओमेगा है, जो आदि और अंत है, जिसके पास सातों आत्माएं हैं, और जिसके मुख से दो धारी तलवार निकलती है,
जिसके मुख से दो धारी तलवार निकलती है, जो अपनी कलीसिया जो अपनी कलीसिया का सिद्ध चरवाहा है, का सिद्ध चरवाहा है, उस जिंदा प्रभु यीशु मसीह उस जिंदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में के नाम में मैं बहन शारोन, मैं बहन शारोन, आप मेरे निकट कुटुंबी आप मेरे निकट कुटुंबी भाई केलब को भाई केलब को आज दिनांक आज दिनांक 27 दिसंबर 27 दिसंबर प्रभु के वर्ष सन 2024 में सन 2024 में अपना मनपसंद पति अपना मनपसंद पति कबूल करने के इरादे से यहाँ खड़ी हूँ। मैं कबूल करती हूँ कि आप ही मेरा इकलौता प्रेम है मेरा इकलौता प्रेम है और आपको छोड़ कोई और नहीं। मैं वायदा करती हूँ यदि आप मुझसे शादी करेंगे मैं जिंदगी भर आपकी बन के रहूंगी और चाहे ऊंच में चाहे नीच में आपका साथ दूंगी आपकी देखभाल करूंगी। वो संतान जो इस पाक रिश्ते से यदि खुदा हमें दे उसकी देखभाल में आपकी मदद करूंगी वरन एक आदर्श पत्नी और माँ बनने का वायदा करती हूँ जब तक हमारा विवाह संपन्न हो वरन आगे भी अपना चाल चलन पवित्र रखूंगी। प्रभु के वचन अनुसार आपको अपना सिर मानूंगी और आपके अधीन रहूंगी। प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ने में आपका पूरा योगदान दूंगी। यहोवा यिरे, यहोवा राफा, यहोवा निस्सी, यहोवा शालोम, यहोवा रा, यहोवा सिदकेनु एवं यहोवा शम्मा की पारिवारिक आशीषें काश हमें मिलें। आमीन। हाथ छोड़ दें, अंगूठियां। हर अहद पैमान के साथ उसकी चिन्हानियां हैं। मैं सबके सामने डिस्प्ले करता हूं ये अंगूठियां जो चिन्हानियों के रूप में अब ये एक दूसरे को पहनाएंगे कि आज से ये एंगेज्ड हैं। आइए इसके लिए दुआ करेंगे। धन्यवादित हैं खुदावन प्रभु यीशु मसीह की आपने बड़ा रहम किया कि आज भाई केलेब और बहन शारोन ने एक डिसीजन के बाद एंगेजमेंट में आपकी वेदी के सामने एक दूसरे के साथ अहद पैमान के कुछ वायदे किए हैं। अब खुदावन जब ये इसके फल स्वरूप चिन्हानियों के रूप में इन अंगूठियों को एक दूसरे को पहनाते हैं, आपके राज में आपकी किताबों में ये कबूल हो। और दुआ है खुदावन कि आज से ये एंगेज्ड गिने जाएं, कि भविष्य में वो दिन भी आए जब ये शादी में के बंधन में एक हों। आपका नाम मुबारक हो। आपके लहू के नीचे इन चिन्हानियों को लाते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ये अंगूठी मेरे किए गए वायदों की निशानी है कि मैं तुझ ही से विवाह करूंगा और तेरे साथ ही बना रहूंगा। आमीन। हाथ छोड़ दें। मेरे साथ बोलें। ये अंगूठी मेरे किए गए वायदों की निशानी है कि मैं आपसे ही विवाह करूंगी वरन आप ही के साथ बनी रहूंगी। आमीन। हाथ छोड़ दें।
मेरे को फेस करें। भाई केलेब और बहन शारोन ने जो एक दूसरे के साथ एंगेजमेंट के अहद पैमान किए हैं, मैं आज से भाई केलेब और बहन शारोन को मंगनीशुदा करार देता हूं, इस उम्मीद के साथ कि बहुत जल्दी वो दिन आए जब इनकी शादी भी संपन्न हो। आइए एक छोटी सी दुआ करेंगे। धन्यवादित हैं प्रभु यीशु मसीह कि आज ये दो जवान भाई केलेब और बहन शारोन एंगेजमेंट के अहद पैमान करके मंगनी के बंधन में बंधे हैं कि अब ये अपने आप को पवित्र रखें दुनिया से और दुनिया की चीजों से और पुरानी दोस्तियों से और पुराने लगावों से, कि अब ये एक दूसरे के लिए पवित्र हों, कि कुछ दिनों के बाद जब प्रभु यीशु मसीह शीत ऋतु खत्म हो और एक वसंत ऋतु आए, तो एक समय आए कि एक शादी भी फ्लरिश हो और ये दो जवान भी एक विवाह के बंधन में बंधने पाए। आप भाई केलेब, बहन शारोन, भाई विमल उनका परिवार, भाई लाजरस उनका परिवार, दोनों परिवार बहुत प्यारे परिवार को आप अपनी बरकतों से भरें। और हम पूरी कलीसिया की ये दुआ है, हम एक मन होकर मांगते हैं कि आप इन्हें ब्लेस करें और खुदा इन्हें फुलाएं फलाएं। आपका नाम मुबारक हो। इसके बाद का भी जो प्रोग्राम किया गया है, इस खुशी के लिए के अवसर पर आप ही उसे देखें। सारे आदर महिमा की योग आप हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके लहू के नीचे मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी आसमान में पूरी होती है, ज़मीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आप हमें बख्श दें और जिस हम माफ़ करते हैं आप हमारे कसूरों को माफ़ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, कि बुराई से बचाएं। कि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है। आमेन एंड आमेन। आप दोनों एक दूसरे को फेस कर सकते हैं और मैं सोचता हूं कि इनके पास एक दूसरे को देने के लिए शायद कुछ होगा, शायद बाइबलें हैं जो अभी एक दूसरे को गिफ्ट के रूप में देना चाहते हैं। तो प्यारी गिफ्ट ही, कितनी प्यारी गिफ्ट है। ऑफ कोर्स यहाँ शायद रुकेगा नहीं, इसके बाद भी कुछ। गॉड ब्लेस यू। आप पढ़ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, गॉड रियली ब्लेस यू। आमेन। सो नाइस टू सी एक मसीह और उसकी दुल्हन की तस्वीर जो हमारी तस्वीर है अपनी आंखों के सामने। गॉड रियली ब्लेस यू। आइए हम लोग सब खड़े हों, आप लोग अपने स्थानों को ग्रहण करें। आइए उस कोरस को गाएंगे, काश की यीशु की खूबियां मुझ में हों। काश की यीशु की खूबियां मुझ में हों, उनका जोश और मोहब्बत मिले मुझको। रूए लाहिया पाए और फिर मुझको जिलाए, ताकि यीशु की खूबियां मुझ में हो। सो बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। गॉड ब्लेस यू। आप एक दूसरे से मिल सकते हैं और जितना जल्दी होगा, मेरा सजेशन है, क्योंकि मौसम